Hi and welcome to our module on motion in a straight line part 6. Right? So today we are going to learn about non-uniform accelerated motion. Then we'll talk about basic calculus. We'll talk what is calculus, okay? Integration and derivative. सुना होगा आपने, right? So we'll talk about calculus, which is integration and derivatives. We'll solve one problem on non-uniform accelerated motion and another one. Okay, so we are going to solve two problems, learn about non-accelerated motion and also about basic calculus. So let's get started. So सबसे पहले I would like to talk about non-uniform accelerated motion. Remember when we talked about the kinematical equations? कौन से होते हैं kinematical equations? You remember? V is equal to U plus AT, S is equal to UT plus half AT square. Also V square is U square plus 2AS है ना. These are kinematical equations which we use for solving problems, but with one exception कि इन सब के लिए acceleration should be constant. I had stressed on this कि acceleration should be constant, तभी ही we can use these three equations. Now we are going to talk about non-uniform accelerated motion. जब acceleration uniform नहीं है, it's going to be non-uniform. It will not be constant. So these equations get kicked out क्योंकि ये हम use नहीं कर सकते अभी. So these equations will not be applicable in non-uniform accelerated motion, right? So let's try to understand this. क्या लिखा है देखो. When acceleration is not uniform, we cannot use kinematical equations, right? So when acceleration is not uniform, we cannot apply kinematical equations. ठीक है, क्योंकि उसका पहला ही क्या था कंडीशन कि acceleration should be uniform, it should be constant, एक constant value होना चाहिए, जैसे कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड सो ऑन. पर जब acceleration चेंज होगा it will be non uniform. हर पल अगर वो चेंज हो रहा है तो we cannot use kinematics. ठीक है, so we use the method of calculus, that is integration and derivatives. ठीक है, तो whenever acceleration is constant we can apply kinematics, but when this acceleration is not constant तभी calculus comes to our rescue. ठीक है, so what exactly do we mean by calculus? ये देखो, to convert S to V to A, do derivatives. अब देखो derivative क्या होता है, बेसिक फंडा derivatives. ओके, क्या है ये derivatives? डेरिवेटिव्स का जनरल फॉर्मूला देखो, अगर हमें x रेस टू n का डेरिवेटिव लेना है तो क्या हो जाएगा, dx बाय dy dx ऑफ x रेस टू n. ठीक है, ये dy dx क्यों डाला है, बिकॉज दिस इंडिकेट्स कि वी आर टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ x. ठीक है, x के डेरिवेटिव के लिए नीचे भी x आएगा. अगर यहाँ पे समझो कोई दूसरा नंबर है y रेस टू n, तो क्या लिखेंगे, d बाय dy ऑफ y रेस टू n. ठीक है, तो ये जो रहेगा वो ही नीचे भी होना चाहिए. दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर. ओके, ये इम्पॉर्टेंट है कि जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे भी होना चाहिए. अगर नहीं हुआ तो वी हैव टू अप्लाई समथिंग कॉल्ड चेन रूल, वो भी सिखाएंगे. ठीक है, सो अभी के लिए जस्ट रिमेंबर ये जो है y, तो यहाँ पे भी y होना चाहिए. d बाई डी एक्स क्या इंडिकेट करता है कि हम डेरिवेटिव्स ले रहे हैं. ठीक है, सो x रेस टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, n टाइम्स x रेस टू n माइनस 1. ये है हमारा जनरल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव्स. ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. अगर x रेस टू 2 है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये देखो, n टाइम्स x रेस टू n माइनस 1, तो 2 टाइम्स x रेस टू 2 माइनस 1. 2 माइनस 1 क्या होता है, 1. x रेस टू 1 कैन बी रिटन एज x, सो 2x. डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर क्या होगा, 2x. ओके,
सो दिस इज नथिंग बट बेसिक डेरिवेटिव. ओके, अभी ये देखो, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी में कन्वर्ट करना है तो हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव. ओके राइट, रिमेंबर डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, तो क्या लेंगे, डेरिवेटिव. एंड वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, इसमें भी हम डेरिवेटिव ले रहे हैं. ये मैं हाफ एरो बना रही हूँ, आपको समझेगा बाद में. तो भी हम डेरिवेटिव यूज़ करते हैं, ठीक है. ये देखो, ये जनरल फॉर्मूला, डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन, मैंने यहाँ बताया था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन इज एन टाइम्स एक्स रेज टू एन माइनस वन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. डेरिवेटिव जनरल, द बेसिक फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव इज दिस, ठीक है. सो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लेना है तो हमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव विल गिव अस वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डेरिवेटिव विल गिव एक्सेलरेशन. तो ये देखो, v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी. डी बाई डी टी क्यों है, क्योंकि हम डेरिवेटिव ले रहे हैं. अभी डी एस बाई डी टी, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी, राइट. सो डी एस बाई डी टी, अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इस बार यहाँ एस नहीं आएगा. डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम लेंगे तो विल गेट वेलोसिटी. सिमिलरली अगर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो व्हाट वी गेट इज एक्सेलरेशन, ठीक है. अगेन डेरिवेटिव ऑफ velocity will give acceleration, derivative of displacement will give velocity. Okay, very nice. So to convert acceleration to velocity, अभी क्या बोल रहे हैं, उल्टा जाना है, ठीक है. acceleration to velocity and velocity to displacement, do integration. अब integration क्या होता है, let's see. ये देखो, x raised to n dx from इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ऐसे लिखते हैं. दिस इज नथिंग बट साइन ऑफ इंटीग्रेशन. ये लिमिट्स अप्लाई किया, ठीक है. दिस इज द लोअर लिमिट, दिस इज द अपर लिमिट. ये क्या है बताओ, लोअर लिमिट, ये क्या है, अपर लिमिट, ठीक है. ये साइन इंटीग्रेशन का साइन होता है. जैसे डेरिवेटिव के लिए वी यूज टू राइट ना डी बाई डी एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स लिखते थे. वैसे ही फॉर डेरिवेटिव्स, सॉरी फॉर इंटीग्रेशन, ये साइन होता है, ठीक है. ये इंटीग्रेशन का साइन है. सो ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है. सो फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स रेज टू एन डी एक्स, ऐसे पढ़ेंगे उसको, ठीक है. सो एक्स रेज टू एन डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन. सिंपल, ये भी जनरल फॉर्मूला. ये देखो यहाँ पे दिया है, आई विल हाईलाइट इट फॉर यू. एक्स रेज टू एन डी एक्स क्या होगा, एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन. एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव क्या होगा, एन टाइम्स एक्स रेज टू एन माइनस वन. एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है. अभी ये देखो, वेलोसिटी को अगर हमें डिस्प्लेसमेंट में बदलना है और एक्सेलरेशन को वेलोसिटी, ये उल्टा जा रहे हैं हम लोग, है ना. तो उल्टा जाने के लिए इंटीग्रेशन. तो इससे हमें क्या समझा कि डेरिवेटिव का उल्टा करेंगे तो व्हाट यू गेट इज इंटीग्रेशन. डेरिवेटिव का उल्टा इज इंटीग्रेशन, ठीक है. सो यहाँ पे देखो, वेलोसिटी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, हमेशा ध्यान में रखना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही लेना है. यहाँ पे भी देखो, हमने डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लिया था विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट, और हमें मिला क्या था, वेलोसिटी. वेलोसिटी का डेरिवेटिव लिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या मिला, एक्सेलरेशन. सो सिमिलरली इंटीग्रेशन में भी कुछ ऐसा ही करना है. वेलोसिटी का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट का, सॉरी, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स वेलोसिटी. समझा है ये. सो बेसिकली डेरिवेटिव का उल्टा करेंगे तो वी गेट इंटीग्रेशन, है ना.
फिर एट मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इट स्टॉप्स एक्सेलरेटिंग, दैट इज एक्सेलरेशन इज 0 एट वी मैक्स. दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर. ठीक है. सो एट मैक्सिमम वेलोसिटी, जब वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है तो वी स्टॉप एक्सेलरेटिंग. एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा जब वी मैक्स होगा. ठीक है. सो अगेन, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ तो व्हाट डू वी यूज़? काइनेमैटिक्स. कांस्टेंट नहीं हुआ तो व्हाट डू वी यूज़? कैलकुलस. कैलकुलस में क्या क्या आता है? इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव. अभी ये देखो, ये जो डायग्राम हमने इनकम्प्लीट छोड़ दिया था, अब इसको कंप्लीट करेंगे. वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट अगर जाना है, ये देखो वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट में कैसे कन्वर्ट हुआ? इंटीग्रेशन करके, राइट. तो अब यहाँ क्या लिखेंगे हम? वेलोसिटी टू डिस्प्लेसमेंट विल बी इंटीग्रेशन, और यहाँ पे भी एक्सेलरेशन टू वेलोसिटी के लिए भी इंटीग्रेशन. तो बेसिकली जो डेरिवेटिव करता है उसका उल्टा इंटीग्रेशन करता है. समझा ये, है ना? ओके, सो लेट्स मूव अहेड. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. ठीक है. सो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है? फॉर अ मैन मूविंग ड्यू ईस्ट विथ वी एम इज इक्वल टू 1 kmph, 1 किलोमीटर पर आवर. तो वी एम क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन. मैन कैसे जा रहा है? 1 किलोमीटर पर आवर से. और रेन की क्या है वेलोसिटी? √3 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. रेन की √3 किलोमीटर. तो एट वॉट एंगल फ्रॉम वर्टिकल द मैन हैज़ टू होल्ड हिज अम्ब्रेला. ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स विथ रिस्पेक्ट टू मैन. ये देखो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स विथ रिस्पेक्ट टू मैन, VRM. ठीक है. ये सीखा था हमने रिलेटिव मोशन में. अब ये डायग्राम देखो गौर से. क्वेश्चन में क्या बोला है? मैन इज मूविंग ड्यू ईस्ट और उसका वेलोसिटी कितना है? 1 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. तो मैन कैसे जा रहा है? ईस्ट में जा रहा है. अब बताओ ईस्ट कहाँ है? ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, नीचे साउथ है, राइट. ये पता है सबको. ठीक है. नाउ अब ये ध्यान से देखो. ठीक है. मैन कहाँ जा रहा है? इन लोगों ने बताया मैन कहाँ जा रहा है? ड्यू ईस्ट. मैन ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है. और रेन कैसे बोले हैं उन लोगों ने? रेन किस डायरेक्शन में जा रही है? देखो रेन फॉलिंग वर्टिकली. तो फॉलिंग वर्टिकली मतलब समझ जाने का, नीचे की तरफ. सो वाई एक्सिस विल बी द वन विच विल बी कंसिडर्ड, है ना? वर्टिकली. बारिश तो नीचे ही आएगी, वर्टिकली डाउनवर्ड्स. ठीक है. तो ये है रेन का डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड्स. ठीक है. और ये है मैन का डायरेक्शन, ड्यू ईस्ट. ओके. सो क्या पूछ रहा है कि किस डायरेक्शन में ही शुड होल्ड इज अम्ब्रेला. तो अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में होल्ड करना है. एंड ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप्स. रेन ड्रॉप्स का स्पीड भी फाइंड करना है. अभी ध्यान से देखो. ठीक है. ये मैन है, VM उसकी वेलोसिटी. ये रेन है जो नीचे जा रही है, वेलोसिटी ऑफ रेन. ठीक है. अब मैन की वेलोसिटी कितनी है? 1 kmph. ये मैन की अम्ब्रेला है. ही इज गोइंग टू होल्ड इट फ्रॉम एन एंगल थीटा. ये एंगल कितना है? थीटा. फ्रॉम द वर्टिकल. ठीक है. वर्टिकल से कितना एंगल बना रही है उसकी अम्ब्रेला? लेट अस अज्यूम थीटा. ठीक है. तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यस, वेरी गुड. इसमें वील यूज रिलेटिव मोशन, है ना? क्योंकि इंसान भी मूव कर रहा है, द मैन इज ऑल्सो मूविंग, और रेन ड्रॉप्स भी नीचे आ रहे हैं, राइट. अगर दोनों मूव कर रहे हैं तो वी आर गोना यूज रिलेटिव मोशन, राइट. सो रिलेटिव मोशन में क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन पूछा है. ठीक है. क्या पूछ रहे हैं ये लोग? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन. ठीक है. तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का क्या फॉर्मूला सीखा था? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस द वेलोसिटी ऑफ मैन. ठीक है. वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस द वेलोसिटी ऑफ द मैन. अभी वेलोसिटी ऑफ रेन तो हमें दिया है,
√3, बट ये क्या है -√3j। लेट्स गेट बैक टू द डायग्राम। तो ये देखो, जो भी चीज़ें अलोंग द एक्स एक्सिस होती है उसको हम आई बार करके बोलते हैं, क्योंकि वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर है, सो इट विल हैव मैग्नीट्यूड, इट विल हैव डायरेक्शन, ठीक है। सो ये आई बार है, ये क्या है -i बार, क्यों, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में। और जो भी चीज़ें अलोंग द वर्टिकल होती है उसको हम j से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, i, j और k। तो जो भी चीज़ें अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स अलोंग द z एक्सिस, सो x एक्सिस के लिए क्या यूज़ करते हैं i बार, y एक्सिस के लिए क्या यूज़ करते हैं j बार, और z एक्सिस, ठीक है, z एक्सिस के लिए क्या यूज़ करते हैं k बार। तो अब इसका तो हो गया मैन का +i बार, बट रेन को -j बार मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये साउथ में है। वेरी गुड, नीचे जा रहा है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो नीचे की डायरेक्शन को -j बार लेंगे, इसीलिए यहाँ लिखा है -√3j बार -1i बार। वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है √3j बार विद अ नेगेटिव साइन, और वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है 1i बार, क्योंकि 1 किलोमीटर पर आ रहा है, तो 1i बार। तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है, ये क्लियर है। तो अब इसको, ये दोनों कैसे है, राइट एंगल्स पे है, सो ऐसे ही ऐड नहीं कर सकते, डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है, हाँ। सो वी नीड टू यूज़ वेक्टर्स, ठीक है, वेक्टोरियली ऐड करेंगे इन दोनों को। सो ये देखो वेक्टोरियली कैसे ऐड करेंगे, वील टेक इनका रिजल्टेंट, अगेन पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि दोनों राइट एंगल्स पे है, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। सो √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो 3 + 1 4, 4 का रूट क्या होता है 2। सो इससे हमको क्या समझ में आया कि जब ऐसे प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं तो व्हाट वी नीड टू यूज इज वेक्टर्स, उनका डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। डायरेक्शन के हिसाब से वी कैन नॉट ऐड एनी वेलोसिटी, कोई भी वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। जैसे मैन यहाँ ईस्ट में था बट रेन ड्रॉप्स तो नीचे है ना, वी कैन नॉट ऐड देम की √3 + 1 ऐसे नहीं कर सकते, राइट। दे आर इन डिफरेंट डायरेक्शन, सो वेक्टोरियली ऐड करेंगे। अब ये हो गया। अब tan थीटा क्यों निकाल रहे हैं हम लोग, बिकॉज इन लोगों ने क्या पूछा है, ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, और यहाँ क्या लिखा है एट वॉट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल द मैन हैज़ टू होल्ड हिज अम्ब्रेला, ठीक है, वॉट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल। तो उसके लिए वी यूज tan थीटा क्या होता है Vm/VR। लेट्स सी थीटा कहाँ है, यहाँ पे tan थीटा क्या होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट क्या है Vm, थीटा यहाँ पे है, ऑपोजिट क्या है Vm, एडजेसेंट क्या है VR, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट इज tan थीटा। तो जब भी डायरेक्शन पूछा है वी आर गोना यूज tan थीटा, ठीक है, tan थीटा। तो tan थीटा क्या मिला Vm/VR, Vm क्या है 1, VR इज √3, 1/√3, सो थीटा क्या मिल गया 30 डिग्री, बिकॉज tan 30 इज 1/√3, राइट। तो थीटा इज 30 डिग्री। सो ये लोग क्या बोल रहे हैं, द मैन हैज़ टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल टूवर्ड्स ईस्ट। ये देखो थीटा कहाँ से लिया है हमने, फ्रॉम द वर्टिकल, राइट, ये वर्टिकल है, नॉर्मल लाइन है, स्ट्रेट लाइन, राइट। सो फ्रॉम द वर्टिकल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री द मैन हैज़ टू होल्ड हिज अम्ब्रेला। समझा ये। सो वेन एवर दे आस्क एंगल के लिए ऑलवेज यूज क्या tan थीटा, ठीक है, एंगल के लिए क्या यूज करेंगे tan थीटा। सो नाउ वी आर डन विद दिस। सो ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू यूज वेक्टर्स, ठीक है, वेक्टोरियली ऐड करना है हमें। अभी एक और एग्जाम्पल, ओके। सो दिस इज अ पर्सन P एंड दिस इज अ पर्सन T, ठीक है, और पर्सन P इस कार में है, पर्सन T भी एक कार में है। तो पर्सन T जो है उसकी कार 190 किलोमीटर पर आवर से जा रही है और पर्सन P की कार 150 मीटर पर सेकेंड से, और पर्सन P खुद चल रहा है एट 30 kmph। अब हमें पूछा है वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू T।
अब फॉर्मूला तो हमें पता है Vp माइनस Vt, बट डिड यू नोटिस ये दोनों किस में है, किलोमीटर पर आवर, ये किस में है, मीटर पर सेकेंड. सो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट. कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देखो, इंटू 18/5 लिखा है. ऐसे क्यों लिखा है, 150 मीटर्स पर सेकेंड, मतलब 150 मीटर इन 1 सेकेंड ही इज ट्रैवलिंग, मतलब 150 इंटू 10⁻³ किलोमीटर, बिकॉज किलो इट सेल्फ इज 10⁻+3. दिस इज़ 1 सेकेंड. नाउ 1 आवर में कितनी सेकेंड्स होती है, 1 hour is 60 minutes, which in turn contains 60 seconds. So 60 multiplied by 60, 1 hour में 3600 seconds होती है. So we are gonna write it as, इसको R लिखना है, तो 1 hour is 3600 seconds. तो 1 second is how many hours, x. So x is gonna be 1/3600 seconds. Sorry, hours. I'm so sorry, hours. सो 1 सेकेंड को कैंसिल क्या लिखेंगे, 1/3600 आवर्स. अब ये 10⁻³ नीचे जाके 10⁻+3 बन जाएगा. अभी kmph आ गया, ठीक है, 150 यहीं पे है, तो हमने क्या किया, इसको 3600 डिवाइडेड बाय 1000. अभी ये यहाँ से 100 गया, यहाँ से 100 गया, ये 10 बचा, ये 36. डिवाइड करूँ 18/5, वही तो यहाँ लिखा है. सो दिस इज द कन्वर्जन फैक्टर. अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 18/5. इसका इनवर्स, अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 5/18. वेरी गुड. तो उल्टा करेंगे, समझा, ओके. अब ये लोग क्या बोल रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू t. तो इसका फॉर्मूला तो पता है, वेलोसिटी ऑफ p माइनस वेलोसिटी ऑफ t. बट p जिस कार में है वो कार मूव हो रही है, बट p भी तो मूव हो रहा है. सो इवन p इज मूविंग विद सम वेलोसिटी. यहाँ t तो रेस्ट पे ही है, सिर्फ उसकी कार मूव कर रही है. यहाँ p की कार भी मूव कर रही है, p भी मूव कर रहा है. तो इससे क्या मिलता है, इंटू 18/5 करके वी गेट 540. ठीक है, सो 540 प्लस दिस 30. ये 30 क्यों लिया, क्योंकि सेम बॉडी है. p का टोटल कितना हुआ वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में 540, इस डायरेक्शन में 30. सो यू ऐड देम, सेम डायरेक्शन, राइट. सो वील ऐड इट. सो vp टोटल वेलोसिटी कितनी हो गई, एडिंग ऑफ दीज टू, एडिशन, माइनस vt का कितना है 190. नो नीड टू कन्वर्ट, kmph में है, राइट. सो व्हाट डू वी गेट एट द एंड, इन दोनों का एडिशन कितना होगा, 570 माइनस 190 गिव्स 380 kmph. ठीक है, समझा. सो इस तरह से हमें सॉल्व करना है प्रॉब्लम्स. अगेन वील रिवाइज वंस अगेन. नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में व्हाट डू वी हैव टू डू, वी कैन नॉट यूज काइनेमेटिक्स. ओके, काइनेमेटिकल इक्वेशंस नहीं यूज करने हैं. इंस्टेड व्हाट विल वी यूज, वी विल यूज कैलकुलस. कैलकुलस क्या होता है, इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव्स. ठीक है, सो डेरिवेटिव्स अगेन वील रिवाइज. ठीक है, ओवर हियर डिस्प्लेसमेंट जो है उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वील गेट वेलोसिटी, वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे तो वील गेट एक्सेलरेशन. ठीक है, एंड एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन लेंगे तो वील गेट वेलोसिटी, और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन लेंगे तो वील गेट डिस्प्लेसमेंट. वेरी गुड. अब बताओ x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होगा, n टाइम्स x रेज टू n माइनस 1. इसको कैसे लिखेंगे, d बाय डी एक्स ऑफ x रेज टू n. मतलब क्या इंडिकेट करता है ये कि डेरिवेटिव्स ले रहा है. नाउ इसका क्या इंडिकेशन है, x रेज टू n dx फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजिशंस. तो इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन. दिस मीन्स हमें इंटीग्रेशन यूज़ करना है. तो क्या होगा, x रेज टू n+1 अपॉन n+1. वेरी गुड. सो अब बताओ, हाँ, एक्स स्क्वायर है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x. 2x क्यूब है, 2 क्या है, कांस्टेंट. तो कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे. कांस्टेंट्स आर नेवर यूज्ड इन इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव्स. ठीक है, उसको हमेशा बाहर ले लेंगे. तो क्या होगा, 2 इंटू, अभी ये फॉर्मूला लगा लो, x रेज टू 3 का क्या होगा, 3 टाइम्स x रेज टू 2.
सो क्या मिल गया 6x². वेरी गुड. अब इंटीग्रेशन देखेंगे. अगेन x² है, क्या होगा इंटीग्रेशन x⁻n+1/n+1 x⁻3/3. वेरी गुड. नाउ दैट यू अंडरस्टैंड इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव, वी कैन ईजिली सॉल्व प्रॉब्लम्स जिसमें एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट और नॉट कांस्टेंट. अगर कांस्टेंट हुआ तो काइनेमैटिक्स, नॉन कांस्टेंट हुआ तो कैलकुलस. ठीक है. एंड ऑल्सो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स में वी नीड टू यूज वेक्टर्स. ओके, वेक्टोरियली. First look at the direction and then add them vectorially. Okay. So with this we finish the sixth and the last topic of motion in a straight line. Thank you.